Oops, sorry guys. Right now I am looking at brand new Tom Ford Noir Extreme परफ्यूम. Guys, इस फ्रेगरेंस को लेकर परफ्यूम कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही है बिकॉज जब ये रिलीज़ की गई तब बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे दैट इट वुड बी मोर डार्कर, डेंसर और richer and more aggressive and spicier than the नोवार एक्सट्रीम और ए परफ्यूम. बट गाइस ऐसा था नहीं. जब ये रिलीज की गई गाइस तब बहुत से लोगों ने ये कहा देयर इज नो नीड ऑफ परफ्यूम वर्जन. सम पीपल सेड इट रियली सक्ड एंड सम पीपल सेज दैट इट इज द सेम जूस इन अ डिफरेंट बॉटल. बट गाइस जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया then they are going to like this fragrance. Assalamu alaikum guys, hope so everybody will be doing well and Munzar is here with Men's Line. In this video I am going to give you a detailed review on Tom Ford Noir Extreme perfume and also compare it to the Ode perfume. Guys remember one thing, मैंने यहाँ पे EDP का नाम लिया है, मैंने ओरिजिनल का नहीं कहा. The name of the house is Tom Ford. The nose behind this or the perfumer is Sonia Constant and the company or the supplier is Givaudan. So guys, I am gonna crack into this one and break it down for you guys. So please stay tuned. Welcome back guys and thanks for locking. So guys, here is the bottle and it looks like a gold bar guys. It looks very classy, very elegant. And I am damn sure it's a fingerprint magnet, but don't worry guys, just wipe them off or you are good to go. Guys, this bottle also reminds me of other Ode perfumes or perfume versions of Tom Ford like Costa Azura. And guys, hope so आगे भी आपको इस तरह की bottles देखने को मिलती रहेंगी. So guys, the automizers or sprayers always good on Tom Ford guys, as you see. So guys, let me break it down for you. So guys, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि इसकी जो ओपनिंग है वो लेस एग्रेसिव है एज कम्पेयर टू द ओडे परफ्यूम. उस तरह से आपको स्पाइसेस का एक पंच नहीं मिलता और गाइस इन चीज़ों को इस परफ्यूम के अंदर टोन डाउन किया गया है. दे make the perfume measure more refined, well balanced and mature guys. इस fragrance के अंदर आपको एक balance देखने को मिलेगा. Anyway guys, in the opening I can easily pick on two notes, that is cardamom and especially the ginger note along with some freshness that definitely comes from the citruses. Guys इस fragrance के start में ही आपको एक warmth और peppery kind की feel experience करने को मिलती है because of the cardamom. और यहाँ पे बताता चलूँ जो यहाँ पे cardamom use किया गया है guys वो green और sweet kind का नहीं है. It's very dry or you can say dark. Anyway guys, जब भी ginger note perfumes के अंदर use की जाती है वो आपको एक sharp और effervescent kind की feel देती है, but guys यहाँ पे ऐसा नहीं है. Because of the neroli, it gives you a very piney, very frosty or very greenish kind of feel. Anyway guys, this is the opening. Within 3 to 5 minutes this freshness and citruses will be completely gone guys, and the signature ingredient of the Noir Extreme, the Kulfi note is starting to pop out with some florals and along with the leather, suede and some woods. These florals are hanging around the corners. Whereas इस fragrance के अंदर notes को बहुत ही अच्छे तरीके से blend किया गया है guys और उनको individually differentiate करना थोड़ा सा मुश्किल है. Anyway guys, these floral notes are hanging around the कॉर्नर्स. गाइस जो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कम्बिनेशन और जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो है रोज़ और ऊद का कम्बिनेशन. इस फ्रेगरेंस के अंदर ऊद तो यूज़ नहीं किया गया, बट गाइस जो गायक वुड है वो बेस के अंदर यूज़ की गई है और रोज़ को उसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से गाइस डिफ्यूज़ किया गया है एंड इट गिव्स यू अ ट्विस्टेड रोजी काइंड ऑफ nuances. Anyway guys, let me tell you one thing, these floral notes are used to balance the other notes or you can say these are used to create the balance and gives symmetry and beauty to the fragrance. Guys इस fragrance के अंदर गायक वुड, suede, leather और बहुत सी notes को use किया गया और उन सबको smooth और सबल करने के लिए यहाँ पे guys floral notes को use किया गया है. Anyway guys, when the fragrance steps into the second phase, then guys you will experience the beautiful and delicious kulfi note. Remember one thing guys, if you are expecting something very creamy,
milky, sugary guys, very buttery kind of kulfi along with the pistachio and almonds, then you have badly mistaken. Let me tell you one thing guys, अगर आप कुल्फ़ी को लेते हैं तो अगर आप देखेंगे तो वो बहुत से इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनती है, बट यहाँ पे जो कुल्फ़ी का वो एक सिंगल नोट यूज़ किया जा रहा है और वो सिंथेटिक है गाइस। जब भी किसी आप इंग्रेडिएंट्स का सिंगल नोट सिंथेटिक यूज़ करते हैं गाइस तो वो बहुत ही ज़्यादा शार्प, बहुत ही ज़्यादा पंजी काइंड का होता है और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। बट इफ़ यू हैव द मैच्योर नोज देन यू कैन ईजिली पिक ऑन kulfi guys, and this is not a creamy kind of kulfi guys, it's very pungy and it's very thick and dense. So guys, जैसे जैसे ये फ्रेग्रेंस ड्राइड ऑन फेज में जाती है, जो कुल्फी है वो कंबाइन करता है वनीला के साथ और गैस यहाँ पे बन जाते हैं मोर क्रीमी, मोर स्मूथ एंड सब्ज। गैस ड्राइड ऑन फेज के अंदर ही आपको ओरिजिनल नॉर एक्सट्रीम EDP का जो TN है वो एक्सपीरियंस करने को मिलता है। एंड गाइस ड्राइड ऑन फेस में इट विल बिकम मोर लेदरी गाइस एंड मोर वुडी, बट दीज लेदर्स एंड वुड्स आर जस्ट हैंगिंग अराउंड द कॉर्नर्स गाइस। और ड्राइड ऑन फेस के अंदर ही कहीं पे आपको एक पाउडरीनेस मिलती है बिकॉज ऑफ द tonka beans. Guys, you can say in the dried on phase it will become more warm, sweet, cozy and gourmand kind of scent. Guys, बात करते हैं versatility और wearable factor की guys, I will give it 6 out of 10 because you cannot wear this in the office and it cannot become your signature scent guys, because sweet है, gourmand kind की fragrance है guys, तो जो summers है उसमें थोड़ी सी ये फ्लाइंग होगी गाइस। और ऑफिस वियर में भी मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, स्पेशली अगर आप पहनना भी चाहते हैं तो मीटिंग्स के अंदर आई डोंट रिकमेंड यू टू वियर दिस फ्रेग्रेंस। वेदर की बात करते हैं गाइस, बेस्ट फॉर विंटर एंड फॉल। स्प्रिंग में कह सकते हैं अगर जो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अच्छा हो और आप एक ऑफिस इन्वायरमेंट के अंदर हैं then you can easily wear this one, but guys समर के अंदर मैं आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा। कम्प्लीमेंट फैक्टर की बात करते हैं गाइस तो इट इज़ अ ह्यूज कम्प्लीमेंट गेटर एंड हेड टर्नर गाइस एंड लेडीज रिएक्शंस ऑफ पॉजिटिव। एज ग्रुप की बात करते हैं गाइस, ऑब्वियसली इट इज़ अ परफ्यूम वर्जन गाइस, इट्स मोर मैच्योर, वेल राउंडेड एंड रिफाइंड। तो जो एज ग्रुप है वो है अबव 30। So guys, what are my final thoughts? Let's check it. So guys, overall अगर आप इस फ्रेग्रेंस को देखते हैं guys तो I give it 9 out of 10 because guys जिस तरह से leather, suede, गायक wood guys, jasmine, rose, orange blossom, bergamot guys, citruses, especially the kulfi note along with the ginger and cardamom, जिस तरीके से इन सब नोट्स को guys blend किया गया और उसके बाद इस फ्रेग्रेंस के अंदर एक guys बैलेंस क्रिएट किया गया है, that is excellent. So you can say the perfumery is superb. Guys, second thing, buy करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इफ़ यू आर अ परफ्यूम कलेक्टर गाइस और आपके पास अगर नोआर एक्सट्रीम की जो लाइन है वो ऑलमोस्ट सारी है तो देन मैं आपको रिकमेंड करूँगा गो फॉर इट गाइस। बट इसका अगर आप प्राइस टैग देते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है। एनीवे गाइस, अगर आपकी कलेक्शन के अंदर नोआर एक्सट्रीम नहीं है और आपके पास ऑप्शन आती है इन दोनों की, then I will highly recommend you to go for this one. But guys, if you have the EDP version in your collection and you are not a collector guys, then मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि फिर आप ये बाई ना करें। और अगर आप ये बाई करना भी चाहते हैं गाइस तो इसको आपने ब्लाइंड बाई नहीं करना, ट्राई इट बिफोर यू बाई इट, बिकॉज गाइस अगर आप प्राइस टैग देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई है, तो कभी भी इस तरह की फ्रेग्रेंस जिनका प्राइस टैग बहुत ज़्यादा हाई हो उनको कभी भी ब्लाइंड बाई मत किया करें, बिकॉज डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्किन केमिस्ट्री होती है, किसी को फ्रेग्रेंस पसंद आती है, किसी को नहीं आती। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने रिव्यू अगर दिया है इस फ्रेग्रेंस का और मैंने कहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो आपको भी पसंद आए, बिकॉज परफ्यूम्स आर वेरी सब्जेक्टिव गाइस। और रिव्यू बनाने का एक मकसद होता है कि जब भी आप कोई परफ्यूम बाय करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी परफ्यूम के बारे में नो हाउ हो जाए और आप उसको ईजीली बाय कर सकें, मीन के बाय करने में आपको थोड़ी सी आसानी हो। एनीवे गाइस, इनमें से आपने जो भी फ्रेग्रेंस यूज़ की है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।